We had undergone standard hard water. अभी आ रहे बच्चे, क्या है ये, ऐसा कैसे रोज में फिफ्टी फील करके उनको mute yourself, all of you. So the three titrations we have taken into account. The first solution we have taken, which is called as standard hard water, because we know 1 gram CaCO dissolved in 1 liter. That is 1 gram means 1000 milligram dissolved CaCO3 dissolved in 1 liter, that is 1000 ml. And that is the particular water where the hardness causing impurity only CaCO3 present, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, standard hard water. The second unknown solution of, or the sample, unknown sample hard water, because we don't know उसमें calcium sulfate है, chloride है, nitrate है, जो भी है hardness causing, which is sample hard water, unknown sample hard water. And the third titration we had done कि जो अननोन हार्ड वाटर सैंपल है उसका अलग से किया, उसके बाद सैंपल में 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बॉइल करके कॉन्सेंट्रेट करके उसका सॉल्यूशन बनाया. बॉइल इसलिए किया कि बॉइलिंग के बाद दिस temporary hardness causing impurities have gone. Okay, and these three samples we have taken and we have done the titration. 50 ml standard hard water, 10 ml buffer solution, 2-3 drops of ureochrome black tea, and titrate this flask solution with ethylene diamine tetraacetic acid taken in a burette. So what the particular ureochrome black tea indicator डालने के बाद standard hard water, तीनों भी water solutions are giving wine red color. क्यों, कैसे, ये principle में हमने सब कुछ देखा है. And that particular wine red color, when you put EDTA from the burette, that wine red color changes to blue, bluish black or the navy blue color change होने तक EDTA burette से डालना है. So for standard hard water, we got V1 ml of EDTA to change the color from wine red to blue. I am just brush up last time अच्छे से देखा है. That's why I'm doing it fast. Okay. ये जो आपका मिला, you just throw it, wash the this flask. Again 50 ml unknown standard hard water, unknown sample hard water लेंगे, उसमें फिर से refill किया हुआ, मतलब पूरा फिर से भरने का, and then you have to add EDTA 1 ml, 2 ml, 3 ml, जहां तक आपका वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू. नोट डाउन द रीडिंग फॉर अननोन सैंपल हार्ड वाटर V2 ml. एंड सिमिलरली बॉइल्ड हार्ड वाटर वी आर डूइंग द टाइट्रेशन सेम वे. 50 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर, 10 ml बफर सोल्यूशन, इंडिकेटर डालने के बाद हमारा कलर मिलता है वो वाइन रेड हो जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर वाइन रेड कलर अगेन वी हैव टू टाइट्रेट इट विथ the also called as EDTA from the burette. The reading, that is to turn the wine red color to blue, V3 ml. तो ये तीन रीडिंग V1, V2, V3 we are going to taken into account for calculation of the hardness, total hardness, temporary hardness and permanent hardness. तो अभी देखते हैं. As I said, standard hard water, we know 1 ml standard hard water contains 1 milligram of CaCO3. All of you are getting my point? समझ रहा है? Yes. 1 gram CaCO3 dissolved in 1000 ml. 1000 ml distilled water में 1 gram CaCO3. Gram, I'm just stressing this word 1 gram. 1 gram is equal to 1000 milligram. At the end of the last lecture, I told to you that this lecture you should be in your brain. 1 gram is equal to 1000 milligram. तो 1000 milligram हमने 1000 ml डिस्टिल वाटर में डाला है. तो 1 ml डिस्टिल वाटर में कितना ग्राम मिलीग्राम आएगा? 1 मिलीग्राम, क्योंकि 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. इसलिए मैंने लिखा है कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना मिलीग्राम CaCO3 रहेगा? All of you are getting my point?
समझ रहे हैं कि बच्चों? Since you people are not in front of me, I just always have to has to ask the particular thing to everyone. Okay, तो ये है अपना 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस थ्योरी यू मे हैव टू अटेम्प्ट द थ्योरी क्वेश्चन. ये कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ EDTA मेथड, एक्सप्लेन हाउ टू calculate the hardness, temporary, permanent and total hardness by EDTA. ऐसा करके theory question भी आ सकता है, as well as may have to attempt the this numerical question also. प्रॉब्लम भी आ सकता है. तो इसके लिए ये बेसिक क्या बोलते हैं थ्योरी यू शुड नो. देन मैंने क्या बोला है कि हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर टाइट्रेशन के लिए 50 ml लिया है. सिंस 1 ml standard hard water contains 1 milligram of CaCO3, then 50 ml standard hard water contains V1 ml of EDTA. All of you are able to see? Are you able? 50 ml standard hard water contains V1 ml of EDTA. अभी since I am telling you कि 50 ml standard hard water में V1 ml EDTA, then we can have this particular thing कि 50 ml 1 ml में 1 milligram है, 50 ml में 50 milligrams रहेगा, है ना? That is equal to V1 ml of EDTA. On this particular, we want to, as during last lecture I said to you, what is the degree of hardness or how the hardness has been expressed in terms of CaCO3 equivalents. So same way here, if I would say, जब हमको V1 ml of EDTA लगता है, तब उसमें 50 ml जो आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है वो कितना मिलीग्राम CaCO3 है, उसमें 50 milligram CaCO3 है. So from that you can observe this particular reaction as this particular relation, that is V1 ml EDTA ब्यूरेट से लगता है तब हमको वाटर में, that is स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 50 milligrams of CaCO3 रहेगा. If I would ask 1 ml EDTA लिया, V1 ml EDTA में 50 मिलीग्राम है, 1 ml EDTA में कितना रहेगा? 50 by V1. All of you are getting my point? समझ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very, very important while solving the numerical. Coming to the next, as far as अभी हमने देखा कि ये जो आपका लास्ट जो स्लाइड है इसमें V1 ml EDTA, sorry 1 ml EDTA is equal to 50 by V1 milligrams of CaCO3. मीन्स इसमें ये जो आपका V1 ml EDTA जब लगा तब वो वाटर में 50 ml में कितना हार्डनेस है? 50 by V1 milligrams of CaCO3, because we have to express the hardness in terms of CaCO3 equivalent. तो ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ आपने हार्डनेस जो डिटरमिन किया उससे हमको मल्टीप्लाई करना है जो बाकी दो रीडिंग है, सैंपल हार्ड वाटर एंड बॉइल्ड हार्ड वाटर. उसके लिए ये हम बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इफ वी कंसिडर ये जो अपना क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये स्लाइड, हाँ दिस इज दिस. So now what the second observations हमने 3 टाइट्रेशन किए हैं. फर्स्ट वाज 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. सेकंड हमने क्या लिया? अननोन सैंपल हार्ड वाटर, वो भी 50 ml लिया है एंड उसके लिए जो टाइट्रेशन करके रीडिंग मिला है दैट इज V2 ml. ऑल ऑफ यू आर अग्रीड? ऑल ऑफ यू आर अग्रीड? Yes, ma'am. है ना? तो अभी if we want to means 50 ml unknown hard water जब लेते हैं तो आपका EDTA इतना लगा. We know स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना हार्डनेस हमको मिला? 50 by V1. And this V2
we are going to multiply by 50 by V1 milligrams. So in order to express the hardness, ये जो unknown हार्ड वाटर में कितना हार्डनेस है ये एक्सप्रेस करने के लिए we have to multiply it by 50 divided by V1. That is, this is 50 by V1. Earlier slide में if you remember 50 by V1 1 ml EDTA में मिला. अपना जो इधर का नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ, इसमें हमको कितना मिला? दैट इज V2 by 50, V2 multiplied by 50 by V1. Okay, and this 50 by V1, once you are going to multiply it, this V2, it does mean that hardness is expressed in terms of milligrams of CaCO3. All of you are getting this point? This is very this is very important. Then ये 50 ml अननोन हार्ड वाटर के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने 50 ml अपना टाइट्रेशन के लिए लिया. लेकिन जनरली जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो मिनिमम 1 लीटर पर लीटर वी आर सीइंग ना. एंड एज आई सेड मिलीग्राम्स पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू ppm. डू यू रिमेम्बर यूनिट में मैंने बोला था मिलीग्राम्स पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू ppm. तो हम ppm में एक्सप्रेस करने के लिए ppm में मिलीग्राम्स पर लीटर मतलब पर 1 लीटर, दैट इज 1000 ml पर 1000 ml. कौन आ रहा है बच्चा अभी? हाँ, हाउ लॉन्ग आई शुड डू दिस जॉब? आपको अलाउ करने का ही काम करने का. सो 1000 ml अननोन हार्ड वाटर, या ये 50 ml का इतना है. ये इफ आई वुड आस्क इंस्टेड ऑफ 50, इफ आई वुड आस्क 1000 पर लीटर या 1000 ml अननोन हार्ड वाटर के लिए कितना हार्डनेस रहेगा, तो आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय V2 बाय V1. इंस्टेड ऑफ 50 नाउ वी आर टेकिंग इट एज अ 1000. ओके, दैट इज 50 के लिए इतना हम कैलकुलेट 1000 ml इफ आई वुड से, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय V2 बाय V1. ये जो है आपका पर लीटर. नाउ यू कैन से per liter is nothing but ppm. Now you can say 1000 multiplied by V2 by V1 milligrams of CaCO3 जो हम कैलकुलेट किया ये पर लीटर या पर 1000 ml के लिए है. तो इसका मतलब है ये जो 1000 multiplied by V2 divided by V1 is nothing but your total hardness. ये जो हम 1000 ml के लिए कर रहे हैं ये it is nothing but total hardness, क्योंकि ये अननोन हार्ड वाटर जैसे का तैसा लिया है, उसमें कुछ बॉयल नहीं किया है, कुछ नहीं किया. तो जो हार्डनेस मिलेगा दोनों टाइप ऑफ हार्डनेस रहेगा. इसलिए ये जो हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे हैं वी कॉल इट एज अ टोटल हार्डनेस. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. सो सिमिलरली अभी हम जो हमारे टाइट्रेशन के लिए सेकंड रीडिंग लिया था, थर्ड रीडिंग, आई एम सॉरी, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, सेकंड इज अननोन हार्ड वाटर. एंड सेम अननोन हार्ड वाटर, सेम मतलब उसका एक बकेट में डायरेक्ट किया, उसी बकेट से बॉईल करके 50 ml लिया है. वो 50 ml के लिए आपका रीडिंग कितना आया है? V3 ml. सो इफ वी कंसिडर V3 एज EDTA, एज द लास्ट फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हार्डनेस. 1 ml EDTA के लिए हमको 50 by V1 milligrams of CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस मिला था. तो हमारे बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि टू एक्सप्रेस द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. ओके, तो ये V3 मल्टीप्लाइड बाय 50 बाय V1 इतना हार्डनेस आपका 50 ml में रहेगा. इफ आई वुड आस्क 1000 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए कितना? 1000 multiplied by V3 divided by V1, that is ml जो हम बोल रहे हैं मिलीग्राम्स पर लीटर यू कैन से, क्योंकि 1000 ml के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू कैन से इट इज अ ppm. It is nothing but the ppm, and that particular 1000 multiplied by V3 divided by V1, now you can express this hardness as a परमानेंट हार्डनेस. क्योंकि ये बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ कर रहे हैं, तो बॉइल मतलब टेम्पररी चला गया, उसको मैंने बोला है कैसे बॉइल करने का, प्रेसिपिटेटेड इम्प्यूरिटी फिल्टर करने का, फिर उसको डायल्यूट करने का, उससे 50 ml लेने का,
और उसका टाइट्रेशन करने का। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, ये पर लीटर निकाल के मिलीग्राम पर लीटर का in terms of 1000 multiplied by V3 divided by V1 is nothing but your permanent hardness. इधर हमको टोटल हार्डनेस मिला, इधर हमको परमानेंट हार्डनेस मिला. टोटल माइनस परमानेंट, you will get the hardness called as temporary. All of you are getting my point? समझ रहे हैं? Yes, come on. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. based on अभी unmute करो. Based on this theory, now we are going to see the calculation of hardness. Okay. Now we are going to see the calculation of hardness. So in this case, all of you, hope you must have your notebook. नहीं है तो you just get up and take your notebook. All of you should have your notebook. ये खाली देख के कुछ नहीं समझने वाला है. And even if you are not getting, you should ask me the whatever you are not getting कि ये कैसे हुआ. जैसे हम क्या बोलते हैं ऑफलाइन स्टडी करते हैं वैसे ही you can ask. And any time, okay? All of you are getting. सब लोग नोटबुक लेके बैठे हैं. All of Yes, ma'am. Okay. So now we are going to see as such how this numerical based on EDTA process. ये numerical कैसे होता है देखो. All of you are able to see this slide. Slide देख सकते हैं आप सब लोग? हाँ देख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you should write this particular numerical, okay? अब numerical लिख के ले लो. Numerical में देखो क्या दिया है. 50 ml standard hard water containing 1 milligram pure CaCO3 per ml. Okay? ये numerical simple दिया है. Directly they have given 1 milligram CaCO3 per ml consume 20 ml EDTA. तो आपका स्टैंडर्ड मतलब आप डेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं. ये एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट ले लो या मतलब न्यूमेरिकल के लिए. बट आपका डेटा भी आपका व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल यू शुड बी राइट द डेटा गिवन. दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में तो रहता है बट स्टिल यू शुड राइट कि क्या क्या दिया है. तो क्या क्या दिया है. फर्स्ट 3 रीडिंग V1 V2 V3 है ना. तो सेम 50 ml standard hard water requires how many ml of EDTA? 20 ml EDTA है ना. V1 दिया है. Then second data 50 ml sample hard water requires 25 ml EDTA V2 ml. ये sample hard water है. And वही sample का क्या बोलते हैं बॉइल करके after boiling 50 ml sample after boiling filtering consume 80 ml EDTA. So V1, V2, V3 exactly they have given and they are asking to solve the or to calculate the various types of hardness. Various मतलब 3 types: total, temporary, total, permanent and temporary. First you got the data. Come on, all of you got the data. हाँ समझे क्या? Yes. So from this data now let us see कि हमको इन्होंने दिया है कि फर्स्ट ये क्या दिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस 3 रीडिंग्स ऑलवेज गिव्स यू कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाए. नॉट नेसेसरी दिस वी हैव टेकन कि जो मैंने पहले वाले क्या बोलते हैं थ्योरी में बोला था वैसे देंगे ऑलवेज. क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जैसे मैंने लिया था 1 ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml तो 1 ml में 1 मिलीग्राम. तो इन्होंने तो ऐसा ही दिया है. सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम क्योंकि आपका जो रीडिंग है उस उतना मिलीग्राम्स CaCO3 स्टैंडर्ड हार्ड के लिए आएगा. बट नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी विल गो थ्रू यू विल फाइंड कुछ अलग दे देते कि सपोज 2 मिलीग्राम 0.5 मिलीग्राम ऐसा भी देंगे. कुछ तो अलग देंगे. तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट कि मिलीग्राम पर लीटर में कितना. समझो इधर if they would have given instead of 1 milligram per ml 1 milligram तो 1 gram
सपोज इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम की जगह 1.5 ग्राम्स पर लीटर ऐसा भी दे देते, तो दैट टाइम यू शुड कैलकुलेट कि 1 ml में कितना मिलीग्राम आ जाता है वो. वी विल सी वन बाय वन न्यूमेरिकल, यू विल कम टू नो. सो लेट अस सी फर्स्ट हियर कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 1 मिलीग्राम. तो सेम वे कि 1 मिलीग्राम 1 ml में, तो आपका 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 50 मिलीग्राम CaCO3 रहेगा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये सेम ही दिया है जैसा हमने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है वैसे ही इन्होंने दिया है. 1 ml में 1 मिलीग्राम दिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, तो 50 ml में 50 मिलीग्राम CaCO3 ये आपको पता चलेगा. तो अभी क्या दिया है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का रीडिंग कितना दिया है. जब हम 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो EDTA कितना लगता है 20 ml. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? 20 ml EDTA लगा 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को. अभी आई वुड आस्क 1 ml EDTA में कितना लगेगा, 20 बाय कितना लगेगा, 20 बाय 50 है ना, कितना 50/20. नहीं 50 कैसे, या नहीं ये रॉन्ग लिखा है. 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 20 ml EDTA. हाँ नहीं बराबर है, ये उल्टा रहता है ना, अपना EDTA इधर है, बराबर है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये EDTA के सामने 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिखना पड़ेगा. देन 1 ml EDTA के लिए 50 by V1 दैट इज 20. V1 कितना दिया है 20. 1 ml EDTA के लिए 50 by 20. डोंट कंफ्यूज, ओके, कि ये EDTA के सामने EDTA लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि 20 ml EDTA के लिए 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेते हैं, तब ये 20 ml EDTA लगता है. तो 1 ml EDTA के लिए 50 by 20, तो 2.5 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 आ गया अपना रीडिंग, सॉरी कैलकुलेशन. ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट? हम क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं. तो अभी जो अपना दो सैंपल रहेगा, एक बॉइल्ड हार्ड वाटर थर्ड वाला एंड एक सैंपल हार्ड वाटर. तो सैंपल हार्ड वाटर के लिए रीडिंग कितना दिया है, EDTA कितना लगा है, सैंपल हार्ड वाटर देखो, हाँ 25. 50 ml वाटर सैंपल कंज्यूम 25 ml EDTA. तो आपका हार्ड वाटर सैंपल के लिए 25 ml EDTA लगा है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? तो यदि मैं पूछूंगी 1000 ml सैंपल के लिए, दैट इज ये जो आपका EDTA है वो CaCO3 इक्विवेलेंट्स, और उसके बाद ppm में पर मिलियन या मिलीग्राम्स पर लीटर. तो पर लीटर के लिए हम हमेशा पर लीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो पर लीटर इधर भी हमने देखा है, पर लीटर के लिए कितना आएगा, दिस पर्टिकुलर 25 ml 50 ml के लिए 1000 के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 50 ml. ऑल ऑफ यू आर अग्रीड? सब लोग एग्री हो गया? हाँ. तो इफ आई वुड आस्क 1 ml EDTA के लिए कितना, तो ये जो नहीं, आई एम नॉट आस्किंग, ये आपका ये जो है ये क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वट एवर यू आर गेटिंग दिस 500, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं सेकंड स्टेप लेके कि 1 ml EDTA में आपका 2.5 मिलीग्राम है. सो ये जो हार्डनेस मिला है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इट इन मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई, ये जो 500 है उसको हम 2.5 दैट इज नथिंग बट 50 by 20 से मल्टीप्लाई करके नाउ यू कैन राइट इट मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहा है क्या मैम? That हाँ, 1 बोलो. ml of EDTA should be 50 by 25 ml, no? क्या क्या बोल रहे? So 1 ml of EDTA that should be 50 by 25 ml, right? ये तो है ना, ये है ना
50, ये जो है हमारा, तो ये सेम है ना। वन देखो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का रीडिंग कितना आया, 25 ml EDTA। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो 1000 ml सैंपल हार्ड वाटर के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय, समझ रहे हैं क्या? इस अभी एक पेन का वैल्यू 5 रुपीज है, तो इफ आई वुड आस्क 10 पेन्स का कितना आएगा रुपीज, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, है ना? Not that, ma'am. I got that. I'm asking the down there is written 1 ml EDTA equals 50 by 20 ml, but the data that's given it's 25 ml. The next line, ma'am. The down. That's 50 by 20 ml of CaCO3 equivalent. this one 25 ml रीडिंग नहीं दिया है क्या? This you just try to understand. 50 ml sample hard water, I'll show you the reading. 50 ml, ये 20 ml है वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का रीडिंग, और 50 ml जो सैंपल हार्ड वाटर है उसका रीडिंग कितना है, 50 ml 25। तो अभी ये 50 ml का 25 है, 1000 ml का कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 50, अपना नॉर्मल करने का, और जो भी आएगा कैलकुलेशन उसको CaCO3 इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करने का, बस ये उसका मीनिंग है। ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हम क्यों लेते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हार्डनेस in terms of milligrams of equivalent. Last lecture में थी क्या? What's your name, girl? What's your name? I got that part. कौन सा वाला लाइन, ये वाला नहीं समझ रहा है मैम? उसके ऊपर जो है ना 1 ml ऑफ EDTA वो 50 by 25 होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर जो दिखा है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल इक्वल्स 25। नहीं बेटा, नहीं, ये 1 ml ऑफ EDTA है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइन दोहराया है। 1 ml ऑफ EDTA इज, ये लाइन हमको इधर ये रिपीट किया है, ये दिखाने के लिए कि ये जो 2.5 मिलीग्राम है या 50 by 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हम एक्सप्रेस किया। डेफिनेटली यूर डाउट इज कि आपका इससे कुछ नहीं है, ये तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अभी सेकंड जो थर्ड रहेगा वहां पे भी हम ये ऐसा कैलकुलेशन करेंगे और सेम लाइन फिर से रिपीट करेंगे इधर मल्टीप्लाई करने। ऐसा है, तीनों भी देखो, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। समझ रहे हैं? तीनों भी कैलकुलेशन यू जस्ट गो थ्रू, क्योंकि वो क्या था अपना V1 V2 V3, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन, मतलब वहां पे आपको अच्छे से नहीं मिला होगा, बट हियर यू कैन गेट इट वेरी क्लियरली। ये जो 1 ml है ना, ये इसका है, बिकॉज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हम क्यों कंसिडर करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो ये अपना समझने के लिए लिखा है कि ये 50 by 20 कहाँ से आया, तो ये है डायरेक्टली 2.5 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 by 25 5 120 है ना, एंड ये अपना एक और जीरो देंगे क्योंकि ये आपका ये है ना, तो ये 1250 ये आएगा आपका कैलकुलेशन, वो तो कैलकुलेशन है। तो अभी रीडिंग देखते हैं, देन यू विल कम टू नो व्हाट आई मीन टू से। थर्ड में क्या है कि 50 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर, अभी क्या बोल रहे हैं कि आपका जो बॉइल्ड हार्ड वाटर है उसके लिए कितना EDTA लगा, 18 ml EDTA लगा। तो 50 ml के लिए 18 ml EDTA मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 20 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। इसका रीडिंग कितने, एक मिनट, आई एम सॉरी 50 ml के लिए 18, हाँ 18 लगा, तो 1000 के लिए कितना, 1000 के लिए कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 50, एंड ये डायरेक्टली आपका 50 by 20, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या 2.5 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं क्या? ये वाला जो रीडिंग है इधर 1000 ml के लिए
ये जो 1000 ml के लिए कितना 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 50, 50 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए 18 ml, 1000 बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए कितना 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 50, और ये 50 बाय 20 या 2.5। ये फिर से हम 50 बाय 20, ये ऊपर है आपका, एक मिनट, हाँ बराबर, बराबर है। 1000 multiplied by 18 divided by 50 and multiplied by 50 divided by 20 बराबर है। ये आपका ये आएगा, जो भी आपका जो इधर रीडिंग आएगा, सॉरी कैलकुलेशन आएगा, उसको आपको दिस लाइन अगेन यू शुड टेकन इनटू अकाउंट। ये या आपको 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई कैन राइट ओवर हियर, आपका ये जो है डायरेक्ट स्टेप में, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्टेप ये क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 50। ये अभी एडिट नहीं होगा क्योंकि वो उधर से कॉपी पेस्ट किया है, थ्योरी से पीपीटी के लिए कॉपी पेस्ट किया, एडिट नहीं होगा, ये पार्ट एडिट हो जाए एक स्लाइड में दिखाने के लिए। आई जस्ट पुट इट इन अ सिंगल स्लाइड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 1000 ml multiplied by 18 divided by 50, multiply it by 50 by 20, 50 by 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? You can write it milligrams of CO3 per liter क्योंकि 1000 ml में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आर यू कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स? ये 1250 मिला, ये 900 मिला, मिला कि नहीं? Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. I will give you another one example, then you will come to know. Next example देखो, आप खुद करो, so you will come to know what exactly. Next. This is the numerical. This is the numerical. All of you write it. Right. Instead of talking me, you just see, watch it and write it in your notebook. All of you, both the divisions, all of you are writing. Come on, tell me, answer my question. Are you writing? Yes, ma'am. लिख के ले लो. Yes, ma'am. ठीक है. And try करो. You copy the question. 1-2 minutes I'll give you copy. उसके बाद में लेक्चर के बाद मैं बता दूंगी आपको. And you should try. You are writing fast. उसके बाद आप try करो कैसे. I will ask you the answer is anybody is able to solve the numerical. देखते हैं. Otherwise solve करके लिखा है. But you just try it first. डेटा लिखने का. Students, all of you, this is positively theory या numerical, दोनों में से एक आने ही वाला है. एग्जाम में try to understand. एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आपको either numerical आएगा या theory. Sure shot. Question is sure shot. कोई भी क्वेश्चन पेपर सेटअप करे, ये क्वेश्चन आने ही वाला है. Either you may have to attempt the theory as a principle and ये softening method लिखो, ऐसा करके, या न्यूमेरिकल, ये ऐसा दोनों में से एक आएगा ही. Simultaneously, no, all of you, whenever I'm discussing, all of you don't forget to write your names in chat box, okay? We should write your names in chat box. Names खाली मत लिखो, आपका ये भी लिखो, क्या बोलते हैं,
रोल नंबर ऑल्सो यू शुड राइट, रोल नंबर एंड नेम लिखो, क्योंकि आज उसके आपके बाद 10 मिनट में मेरा सेकंड ईयर का लेक्चर है. आई डोंट हैव टाइम टू कॉल यू. ओके, लिखा क्या ऑल ऑफ यू? कॉपी किया? न्यूमेरिकल ऑल ऑफ यू कॉपी? मैं अभी क्वेश्चन कॉपी कर लिया. अरे फास्ट फास्ट करो बेटा, फास्ट फास्ट करो. एक तो आप सामने नहीं है तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि कितने लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. आई एम डाउट. आपको नहीं समझ रहा है, यू शुड आस्क, doesn't matter. Okay, so coming to the point, if we consider here, first thing what they have given, 0.5 milligrams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution is made of 500 ml. So all of you are getting this 0.5, 0.5 grams. हाँ बराबर है, 0.5 ग्राम CaCO3. पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, मतलब एग्जाम्पल में क्या दिया था, 1 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर इन 1000 ml, दैट इज 1 मिलीग्राम इन 1 ml. अभी इसमें फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे हैव गिवन, 0.5 ग्राम, मतलब हाउ मेनी मिलीग्राम्स? 500. हाँ 500. हाँ, yes, 500 milligrams. Yes, exactly. 500 milligrams. है ना? 1 gram is equal to 1000 milligram. 0.5 gram is equal to 500 milligram. This thing you should know. मैंने from the very first, means EDTA का last lecture also I said to you, all the time, as soon as EDTA example आता है, 3 डेटा तो दे ही देंगे. There is nothing like something different. Only the difference आपको in your brain क्या रखना है कि 1 gram is equal to 1000 milligram. The same thing here, 0.5 gram is equal to 500 milligrams. And per liter नहीं दिया है, per 500 ml. मतलब आधा, इसका मतलब सेम ही हो गया है ना. If you would calculate 0.5 grams dissolved in 500 ml, that is 500 milligrams in 500 ml, तो 1 ml में 1 milligram ही आ गया है कि नहीं? Are you getting my point? Yes ma'am. ये फर्स्ट दिया है. मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, ये लिखो आप, 1 ml में 1 मिलीग्राम ही आ गया. उसके बाद 3 रीडिंग लिखो. 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 48 ml solution of EDTA. फर्स्ट क्या आएगा, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 48 ml EDTA. ये फर्स्ट डेटा. सेकंड में क्या आएगा, 50 ml रिक्वायर्ड, 50 ml sample hard water required, 15 ml EDTA. ये सेकंड डेटा आ गया. एंड ये जो आपका सैंपल हार्ड वाटर है, बॉईल किया, फिल्टर किया, फिर से उसका कितना लिया है, आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर्ड 50 ml, 10 ml. तो 50 ml बॉइलिंग हार्ड वाटर और बॉइल्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 10 ml EDTA. ये 3 डेटा लिखा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 1 ml में 1 milligram CaCO3. Now you try to calculate पहले वाला का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ, बिकॉज आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल. नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, लेकिन लेट मी सी हाउ मेनी पीपल of you got the particular things. तो करके बताओ मुझे कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मैम फर्स्ट वाले का 960 आएगा. फर्स्ट वाले का मतलब टोटल हार्डनेस, हाँ 96. कितना आया, 96. अरे कहाँ से 960 लाए तुम लोग. 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए रीडिंग कितना है, 38 ml. मैम फर्स्ट का आएगा 312.5. 312.5. हाँ 312.5. few people got it.
How I will tell you 900 वाले लोगों को let us see 312.5 फर्स्ट वाला आ गया कम ऑन सेकंड वाला करो सिंपली सेम वे आपका मैम हाँ बोलो परमानेंट हार्डनेस है 204 204 4 नहीं बेटा 20 मुझे पता नहीं अभी मैंने साल में ये रेडीमेड लिया है क्योंकि वो टाइपिंग टाइम तो हम लोग ऐसे ही लिया है मैंने तो 208 लिखा है एनीबडी इज गेटिंग 208 और 204 ही मिल रहा है देखो 204.33 ऐसा कुछ दिया है 208.33 परमानेंट दिया है आई विल शो स्लाइड मिल रहा हाँ मैम I will enlarge it and showing this particular आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आप 1 मिलीग्राम इन 1 ml पर ml ये वाला स्टेप फर्स्ट है सेकंड में क्या दिया है 50 ml all of you are able to see this slide विजिबल है हाँ अच्छे से विजिबल है आपको Yes, ma'am. इसको मैं थोड़ा scroll मैम परमानेंट 208 आ रहा है 208 आ रहा है ना हाँ यस बराबर बिकॉज हियर ऑल्सो दे हैव 208 बराबर है those who are not getting see the things कि फर्स्ट तो समझे ना 1 मिलीग्राम पर ml 1 ml में 1 मिलीग्राम CaC होती है तो अपना कितना ml दिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 50 ml में 50 मिलीग्राम आएगा हाँ 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 50 मिलीग्राम ये देखो ये लिखा है हाँ तो अपना कितना दिया है 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए EDTA कितना लगा है 48 ml EDTA सॉल्यूशन ओके हमको पता है कि 1 ml में 1 मिलीग्राम है तो अपना जो 50 ml स्टैंडर्ड वाटर में 50 मिलीग्राम है ना 50 मिलीग्राम मिलेगा आपको तो 1 ml EDTA में कितना मिलेगा 50 by 48 grams of CO3 equivalent hardness. All of you are getting this step. सबको ये मिल रहा है हाँ हाँ क्योंकि जो भी रीडिंग आ गया 48 ml अपना रीडिंग आ गया है जो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड तो 148 ml 50 मिलीग्राम्स 1 ml EDTA में 50 by 48 मिलीग्राम्स तो भी आंसर आएगा या ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे उसका कैलकुलेट नहीं किया है यहाँ पे डायरेक्टली लिया है कुछ क्या बोलते हैं आपका पॉइंट्स में आ रहा होगा तो ऐसे ही लिया है मल्टीप्लिकेशन तो सेकंड रीडिंग में क्या दिया है कि 50 ml सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर्स 15 ml EDTA तो आपका कितना 1000 के लिए कितना आएगा 1000 ये हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कैसे आएगा 50 ml में 15 तो 1000 ml में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड जो आपका 50 बाय 48 है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट समझ रहा है क्या ये 50 ml में 50 ml में कर्सर देखो 50 ml वाटर में 15 ml EDTA 1000 ml वाटर के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 50 एंड ये जो 50 बाय 48 है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो टोटल आपका कैलकुलेशन आएगा 312.5 ये जिसको समझा नेक्स्ट इसमें आपका बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए बॉइल्ड हार्ड वाटर ml के लिए 10 ml EDTA दिया है ना 10 ml EDTA दिया है तो 1000 ml के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 बाय 48 जो भी आएगा कैलकुलेशन तो कैल्सी यू कैन यूज
अभी फर्स्ट ईयर एवरी सब्जेक्ट यू कैन यूज कैल्सी, तो कैलकुलेशन तो आपके लिए इट्स नॉट द मैटर ऑफ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम या क्वेश्चन, आप कैल्सी यूज कर सकते हैं। 12th के जैसा नहीं कि आप कैल्सी नहीं यूज कर सकते। वंस यू गॉट द बेसिक आइडिया, कैलकुलेटर आपका कैलकुलेट कर देगा बराबर। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ? ऑल ऑफ यू से यस। Yes, ma'am. Yes. हाँ ठीक है जी। समझे क्या नहीं बच्चों सब लोग? किसी को डाउट है? Yes, किसी को ma'am. डाउट है क्या? Yes, ma'am. 1000 के लिए हम क्यों क्योंकि मिलीग्राम्स पर लीटर हम करते हैं, इसलिए जो दिया है 50 के जगह जरूरी नहीं है 50 के जगह आपको 80 ml दिया, 80 के लिए इतना, तो 1000 के लिए कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 50 बाय 48, और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आप लोग सामने रहते थे तो मैं 10 बार आपको क्या लिख के बता देती थी। एनीवे बट यू जस्ट टेक, ये इसको आप कॉपी कर लो, नहीं आपको समझ रहा है, एंड देन यू गो थ्रू वॉच इट, यू विल कम टू नो वेरी इजीली। देखो आपको ना टेक्निकल का क्या नाम, डॉक्टर जयश्री पारिक, I have not seen the book, but it is in a revised syllabus and she is a old time से author है। I am feeling that book would be the good one. All of you are getting my point? डॉक्टर जयश्री पारिक, टेक्निकल पब्लिकेशन है, शायद टेक्निकल का ही रहेगा उनका पब्लिकेशन, तो टेक्निकल पब्लिकेशन, बट द नेम ऑफ ऑथर यू जस्ट गो थ्रू कि डॉक्टर जयश्री पारिक का बुक है। उसमें आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, कुछ क्या बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह भी, मींस टाइपिंग मिस्टेक, आई कैन सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि टाइपिंग ऑथर नहीं करता है, वो किसी को दे के, तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट नो लास्ट ईयर का इसमें मिस्टेक था, बट होप सो कि नहीं रहेगा मिस्टेक, तो यू विल गेट इट थरो एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दिस थियरी न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? किसी को फिर से बताना है क्या? किसी को फिर से चाहिए क्या फिर से? और शैल आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्या बोलते हैं सॉफ्टनिंग मेथड मैं स्टार्ट करूंगी। ओके, अंडर योर सिलेबस up till we had seen what is hardness, what is hard water, what are the types of hard water, temporary and permanent, दो hardness रहता है। Then we had undergone what are the क्या बोलते हैं units of hardness, then we seen the degree of hardness or hardness, how it has been expressed in terms of CaCO3 called as degree of hardness, all these things, and that particular टेम्पररी एंड टोटल परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेशन भी हमने देखा। टोटल इज इक्वल टू टेम्पररी प्लस परमानेंट हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस मतलब सॉरी परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज कौन सा है, टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज कौन सा है, दोनों का इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स व्हेन वी एक्सप्रेस एंड वी ऐड इट वी आर गेटिंग द टोटल हार्डनेस। ऑल दिस थिंग्स वी हैड अंडरगॉन। कमिंग टू द पॉइंट, और हार्डनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये EDTA मेथड, बेस्ड ऑन दैट EDTA मेथड हाउ द न्यूमेरिकल्स आर टू बी कैलकुलेटेड, ये दो लिया है। इफ टाइम परमिट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस आर पॉजिटिव टू बी ऑफलाइन वी विल कंडक्ट मोर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हम कंडक्ट करेंगे। आप सामने रहते हैं तो फास्ट यू ब्लैक बोर्ड पे मैं ज्यादा बताती हूँ, you will come to know very easily. Coming to the point, that is how this water, hard water calculate किया। अभी point comes कि उसको हम कैसे softening बनाएंगे, how to get the softening, that is coming under softening processes. Number of processes are there. क्या बोलते हैं earlier syllabus, previous syllabus, there were two more processes, lime soda and zeolite. We used to teach both the processes, theory भी, numericals भी, सब कुछ आता था। But now, and this third one process, ion exchange process. This revised syllabus, you just go through the syllabus, revised syllabus 1920 का revision है आपका first year का। There you will find only single method or the process, ion exchange process.
for the removal of hardness, and that is the what you can say the most advanced, well accepted worldwide softening process called as ion exchange process for softening of hard water. And what is this ion exchange process? The term itself designates the meaning ion. Both the ions, cations and anions, positive and negative, both the types of ions causing or giving hardness to that of the water, both are being removed by the process which we called as ion exchange process. तो ये इसका definition नहीं है. Ion exchange process comprises the ion exchange resin, or it is also known as demineralization process, because this process removes all the organic inorganic minerals causing or giving the hardness. And this way, the ion exchange process is the one which exchanges its cations with the other cations, or which exchanges its H plus ions with the other cations, is known as cation exchange resin. And the resin which exchanges, cation exchange resin is the one which exchanges its H plus ions with the other cations. And anion exchange resin is the one which exchanges its H minus ions or anions with the other anions, is called as anion exchange resin. Now the point comes कि ये resin क्या है? What is this ion exchange resin? In general, the terminology which I am using is ion exchange resin. So ion exchange resin is cross-linked long chain microporous polymer, organic polymer. What is ion exchange resin? Ion exchange resin is cross-linked long chain, what you can say, the three-dimensional or microporous organic polymer is called as ion exchange resin. And just now I said to you, cation exchange resin, which exchanges its क्या बोलते हैं H plus or cations with the other cations, and anion exchange resin is the one which exchanges its OH minus ions or the anions with the other anions. And हमारा जो hard water है उसका cations and anions. Cations means calcium, magnesium, heavy metals like aluminum, iron. All these have been exchanged by the cation exchange resin bed. And SO3H, COOH, these are the particular cation exchange resin bed containing cations. And anion exchange resin bed contains the anions. That is, you are having sulfate, chlorides, minus ions, anions. And this is the particular process. Basic idea of this process before starting the process is very simple as such. कि हम दो टैंक लेते हैं. We are having three-dimensional. अभी क्या offline रहता है तो I used to draw the diagram. So you are having the two vertical tanks. Basically, the one which comprises cation exchange resin bed, उसको बोलते हैं cation exchange resin bed, and the another vertical stainless steel tank comprises anion exchange resin bed. So these two tanks you are finding means the particularly here pump karte water. Okay, the first of all what we are doing, we are taking the sample hard water through this inlet. Okay, ये जो hard water sample inlet है उससे हम hard water which we allow to fall in on this cation exchange resin bed. जो cation exchange resin bed है उस पे हम allow to fall. तो हार्ड वाटर में तो आपका पूरा हार्डनेस कॉजिंग इंप्यूरिटीज है, cations भी है, anions भी है, सब कुछ है. Now this cation exchange resin bed exchanges its H plus ions with the cation which are present in hard water. जो हार्ड वाटर में आपका cations है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्सचेंज हो जाता है. ये रेजिन बेड, cation exchange resin bed ले लेता है, उस पे एक्यूमुलेट हो जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस एक्यूमुलेट हो जाता है. और आपका जो वाटर है फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर टैंक यू आर गेटिंग द, यू आर पंपिंग. एक्चुअली इधर पंप भी दिखाते हैं, ये रेडीमेड डायग्राम है. आई यूज्ड टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. भले ही ये वर्टिकल लाइन अच्छे से नहीं आएगा बट ऑल द रिक्वायर्ड things I used to draw. So here now the water from the bottom is pumped into the next
tank, stainless steel tank, which comprises anion exchange resin bed, जिसमें आपको anion exchange resin bed मिलेगा, which contains NH3, NCH3 thrice, PCH3 thrice, whatever the are containing over this anion exchange resin bed. और ये जो cations अपना इधर accumulate हुआ है cation exchange resin bed से, like calcium, magnesium, aluminium, iron, ये सब इधर निकल गया, बेड पे accumulate हो गया. वो वाटर जिसमें cations नहीं है, ऐसा वाटर now we are pumping into the another resin bed, anion exchange resin bed, जहां पे आपका Cl, chloride, sulfate, all anions are being accumulated over the bed of this anion resin, exchange resin bed. And दोनों भी बेड से जो वाटर निकलता है, वो जो वाटर है, there you will not find any cations and anions causing or giving the hardness to the water, hard water sample. Next time हम देखेंगे ये NaOH क्या है, ये ClH2 क्या है, ये हम नेक्स्ट टाइम फिर से थोड़ा देखेंगे. Then you have to, this is also one of the theory question है, ये भी sure short question है, theory या numerical, इस पे भी theory and numerical दोनों में से एक आएगा ही 100%. जिस जो क्वेश्चन पेपर में theory आएगा वो numerical नहीं पूछेगा, जिस इसका numerical पूछा तो EDTA का theory पूछेगा. ऐसा definite question दोनों आपको करना है, theory and numerical. Sure short question, you should get the full marks. क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है, explain the softening ion exchange resin process for softening of hard water, give the reactions, regeneration reactions, and what are the advantages and disadvantages of this process. ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के लिए रहेगा. So next time, and उस पे ही आपका न्यूमेरिकल्स है, so we will go through the numerical as well as the theory during the next lecture. All of you got my point? समझे क्या सब लोग? Yes, ma'am. Don't forget to write in the chat box. आपका attendance लिखो, all of you. Chat box में लिखा क्या attendance all of you? लोग? Yes, ma'am. Okay. Both the divisions, all of you write your. डायग्राम दिखाओ वापस.